عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ ہدیہ درود نشاور کریں اور جھوم جھوم کر بآواز بلند پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسلامی نقطۂ نظر سے موسموں کی تبدیلی کا سبب، یعنی کبھی موسم کا سرد ہو جانا اور کبھی گرم ہو جانا، کبھی سردی اور کبھی گرمی ہونے کا سبب یہ جہنم کا سانس لینا ہے۔ یعنی آج ہم اپنی اس زندگی میں دیکھ رہے ہیں کہ کبھی سردی ہوتی ہے تو کبھی گرمی ہوتی ہے، تو گرمی اور سردی کا جو سبب ہے وہ جہنم کا سانس لینا ہے۔ یعنی جب جہنم سانس لیتی ہے تو جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے کبھی گرمی ہوتی ہے اور کبھی سردی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اور ایسے صحابی ہیں کہ جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سب سے زیادہ ہم اور آپ تک پہنچایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اشتکت النار الی ربها وقالت اکلا بعضی بعضا فأذن لها بنفسين في كل عام، نفس في الشتاء ونفس في الصيف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم نے اللہ کی بارگاہ میں درخواست پیش کی کہ میرے پروردگار، میرا بعض حصہ بعض حصے کو کھاتا ہے۔ کبھی گرمی ہوتی ہے تو حد سے زیادہ گرمی کی وجہ سے ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا جاتا ہے، اور کبھی حد سے زیادہ میرے اندر گرمی جو ہے وہ گرمی ایک حصے کو دوسرا حصہ کھا جا رہا ہے۔ تو اے پروردگار عالم، مجھے سانس لینے کی اجازت عطا فرما۔ جہنم نے اللہ کی بارگاہ میں یہ درخواست پیش کی تو اللہ رب العزت نے اس کی درخواست کو قبول فرمایا اور اسے سال کے اندر 2 سانس لینے کی اجازت عطا فرمائی، ایک سانس سردی کے موسم میں اور دوسری سانس گرمی کے موسم میں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم اللہ کی اجازت کے بعد ہر سال 2 سانس لیتی ہے، نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف، ایک سانس سردی کے موسم میں لیتی ہے اور دوسری سانس گرمی کے موسم میں۔ فما وجدتم من برد او زمہریر فمن نفس جہنم وما وجدتم من حر او حرور فمن نفس جہنم۔ تو تم آج دنیا کے اندر جو سردی کی ٹھنڈک محسوس کرتے ہو یا گرمی کی تپش محسوس کرتے ہو، تو یہ جو سردی ہمیں اور آپ کو لگتی ہے یا گرمی کے موسم میں حد سے زیادہ
गर्मी का एहसास होता है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि ये जहन्नम के सांस लेने की वजह से ऐसा होता है। जहन्नम जब सांस लेती है मौसम सरमा यानी सर्दी के मौसम में, तो हद से ज़्यादा सर्दी होती है, ठंडी होती है, जिसका हम और आप एहसास इस दुनिया के अंदर करते हैं। और गर्मी के मौसम में जब वो सांस लेती है तो उसकी गर्मी और उसकी तपिश का एहसास दुनिया के अंदर बसने वाली अल्लाह की तमाम मखलूक और बिलखुसूस इंसान करते हैं। यानी इस हदीस पाक से हमें और आपको ये पता चल रहा है कि गर्मी और सर्दी का सबब ये जहन्नम का सांस लेना। और दूसरी चीज, जहन्नम के अंदर जो जहन्नम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा फरमाया है, उस जहन्नम की दो खुसूसियतें, दो सिफतें मालूम हो रही हैं। एक तो ये कि जहन्नम के अंदर एक हिस्सा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसा पैदा फरमाया है कि जिसके अंदर उसकी सर्दी, उसकी ठंडी हद से ज़्यादा हुआ करती है। और दूसरा हिस्सा जहन्नम का ऐसा है कि वो हद से ज़्यादा गर्म है और उसकी गर्मी की शिद्दत बयान से बाहर है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बज़ाहिर हम और आप ये देखते हैं कि ठंडी हो या गर्मी हो, ये हमारे और आपके लिए तकलीफ का सबब बज़ाहिर मालूम होता है। हम और आप ये समझते हैं कि हमारे जिस्मों को जो सर्दी महसूस होती है, ठंडक महसूस होती है, या गर्मी के मौसम में जो हद से ज़्यादा गर्मी महसूस होती है, वो हमारे लिए नुकसानदेह है, लेकिन ऐसा है नहीं। चाहे वो सर्दी हो, चाहे वो गर्मी हो, अल्लाह की तमाम मखलूक के लिए सर्दी और गर्मी बहुत ही फ़ायदेमंद है। और दुनिया के अंदर चाहे वो इंसानी मखलूक हो, चाहे वो जमादात हो, नबातात हो, उगने वाली चीज़ें हो, या जानवर हो, अल्लाह ने जितनी भी मखलूक़ात को दुनिया के अंदर पैदा फरमाया है, सबों के लिए ये सर्दी का मौसम या गर्मी का मौसम फ़ायदेमंद है। और बिलखुसूस सर्दी का मौसम अल्लाह के उन बंदों के लिए जो ईमान वाले हैं और ईमान वालों में जो इबादत गुजार हैं, अल्लाह की इबादतों बंदगी से दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, अश्शिताओ गनीमतुल आबिदीन, गर्म सर्दी का मौसम, ठंडी का मौसम, ये इबादत गुजारों के लिए गनीमत का मौसम है। यानी इबादतों की तरफ, अल्लाह की बंदगी और उसकी हम्दो सना की तरफ लौटने का मौसम है। गर्मी में ये हुआ करता है कि गर्मी में सुस्ती और काहिली की वजह से इंसान कहीं ना कहीं पर इबादत से, अल्लाह की बंदगी से कहीं ना कहीं सुस्ती और काहिली की वजह से दूर हो जाया करता है। लेकिन ठंडक के महीने में, सर्दी के महीने में अल्लाह के बंदे को अल्लाह की इबादत से, अल्लाह की बंदगी से किनारे होने का और हम किनार होने का एक आसान और एक काबिल कद्र मौका फराहम किया जाता है। क्यों? इसलिए कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि ठंडी का मौसम बंदे मोमिन के लिए मौसम गनीमत इसलिए है कि ठंडक के महीने में और ठंडक के मौसम में दिन छोटे हुआ करते हैं, और जब दिन छोटे हुआ करते हैं तो अल्लाह के बंदों के लिए रोज़ा रखना आसान हुआ करता है। जो लोग मई और जून में रोज़ा रखते हैं, उन्हें इस बात का एहसास होगा कि इस महीने में यानी दिसंबर, जनवरी और फरवरी के महीने में रोज़ा रखना कितना आसान है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, अश्शिताओ रबीउल मोमिनी कसुरा नहारुहु फसामा,
वताला लैलहु फकामा, बंदे मोमिन के लिए मौसम बहार यानी बहार का मौसम है, ये सर्दी का महीना, इसलिए कि इसके जो दिन हुआ करते हैं वो छोटे हुआ करते हैं, जिससे ईमान वालों को ये फ़ायदा पहुंचता है कि वो बआसानी इन महीनों में रोज़ा रखते हैं, और ठंडक के महीने में इसकी रातें लंबी हुआ करती हैं, जिसका फ़ायदा बंदे मोमिन को मिलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उन रातों में अल्लाह की इबादत व बंदगी करने का उन्हें मौका फराहम हुआ करता है। दिन छोटा हो तो रोज़ा रखने में आसानी हो, और रातें लंबी और बड़ी हों तो ज़्यादा से ज़्यादा रातों के अंदर जाग करके अल्लाह की इबादत व बंदगी करने का हमें और आपको मौका मिलता है। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये हम और आप समझते हैं कि ठंडक की वजह से परेशानियां लाहिक होती हैं, लेकिन कुरान और अहादीस से हमें पता चलता है कि मुसलमानों के लिए और मुसलमानों में ऐसे लोग जो इबादत से दिलचस्पी रखते हैं, अल्लाह की इबादत व बंदगी का शौक़ उनके दिलों के अंदर है, उनके लिए ये मौसम गनीमत है, और इबादत व बंदगी से हम किनार होने का एक ज़रिया और एक सबब। इस महीने में हम और आप देखते हैं कि कुरान और हदीस के अंदर तो ये आता है कि सर्दी का मौसम बंदे मोमिन के लिए राहत और आसानी लाता है, लेकिन हम और आप की ईमान की कमज़ोरी का आलम यह है कि हम और आप इस मौसम के अंदर इबादतों से, अल्लाह की बंदगी से, उसकी तस्बीह व तहलील से इतना दूर रहते हैं कि हमें और आप तो इबादत व बंदगी तो दूर की बात है, इन मौसमों के अंदर हम और आप का हाल ये है कि अगर नापाक हो जाए तो पाक होने के लिए भी जिगर की ज़रूरत होती है और बड़ी हिम्मत की ज़रूरत होती है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सफाई ये इस्लाम का खासा है, और इस्लाम के अंदर पाकी हासिल करने को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, अन-नज़ाफ़तु या अत-तहारतु निस्फ़ुल ईमान। पाकी हासिल करना किसी भी मौसम में, चाहे वो गर्मी का महीना हो, जाड़े का महीना हो या कोई और महीना हो, हर महीने में, हर हाल में पाकी हासिल करना ये ईमान का हिस्सा है। एक ईमान वाले का एक काम है, उसकी सिफत, उसकी खूबी हुआ करती है। लेकिन इस महीने के अंदर और इस मौसम के अंदर, सर्दी के महीने के अंदर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन असबगल वज़ुआ फिल बर्द शदीदी काना लहू मिनल अजरी कि फलान। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि सर्दी के महीने में और सर्दी के मौसम में वज़ू करना, अगर वज़ू की ज़रूरत महसूस हो अल्लाह की इबादत के लिए, कुरान की तिलावत के लिए, कुरान को छूने और मस्जिदों में आने के लिए अगर आपने वज़ू किया है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, आम दिनों में वज़ू का जो सवाब है, वो सवाब जो आम दिनों में है, अगर आपने वज़ू किया है तो ठंडक के महीने में वो सवाब आपके नामे अमाल में दुगना हो जाया करता है। और वज़ू करने का आम दिनों में जो सवाब है, मौसम सरमा यानी सर्दी के महीने में वही वज़ू आपके नामे अमाल में डबल नेकियों के इजाफे का सबब हुआ करता है। और एक दूसरी हदीस के अंदर हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद के अलावा बहुत सारे जो रावियान हदीस है बयान फरमाते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि इस महीने के अंदर और इस मौसम के अंदर वज़ू करना, ये मुकम्मल वज़ू करना और ईमानदारी के साथ वज़ू के फ़राइज़ व वाजिबात को, सुनन व मुस्तहब्बात को अदा करना, ये ईमान की दलील है और भलाई और खैर की दलील है। इन महीनों में अगर आपको नहाने की ज़रूरत हो, आप नापाक हो, गुस्ल की ज़रूरत हो, या अगर आप नापाक ना हो, मस्जिदों में आने के लिए, कुरान की तिलावत के लिए, नमाज पढ़ने के लिए वज़ू की ज़रूरत हो, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के एतबार से
पाकी हासिल करना, वजू और गुस्ल करना, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ये ईमान की दलील है और ईमान वालों की पहचान है। यानी इस मौसम में वजू करना, गुस्ल करना बक़दरे ज़रूरत बवक़्त हाजत, ये ईमान वालों की पहचान है। जो ईमान वाले हुआ करते हैं इन मौसमों में बिलखुसूस वो पाकी हासिल करते हैं और पाकी हासिल करके अल्लाह की इबादत व बंदगी का मज़ा लिया करते हैं। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक आखिरी हदीस सुना करके अपनी बात में ख़त्म कर रहा हूँ। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने दो बंदों से बड़ा खुश हुआ करता है। एक तो मुजाहिद हुआ करता है जो अल्लाह के रास्ते में इस्लाम को, मुसलमानों को अगर ज़रूरत महसूस हो, जानो माल की कुर्बानी की ज़रूरत हो तो जान की कुर्बानी देकर के, माल की कुर्बानी देकर के इस्लाम और मुसलमानों की मदद करे। अल्लाह अपने ऐसे बंदे से बहुत खुश हुआ करता है। और दूसरा बंदा जिससे अल्लाह बहुत खुश हुआ करता है वो अल्लाह का वो बंदा है कि जो सर्दी के महीने में जब सारी दुनिया सो रही हो तो सख्त सर्दी की रात में उठे और उठ करके वजू करे और अल्लाह की बंदगी करे, नमाज पर नमाज पढ़े, तहज्जुद की नमाज पढ़े, नवाफिल की अदायगी करे तो अल्लाह अपने ऐसे बंदे से खुश हुआ करता है। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब सख्त सर्दी की रात में अल्लाह का कोई बंदा वजू करके नमाज अदा करता है, अल्लाह की तस्बीह व तहलील बयान फरमाता है तो अल्लाह अपने फरिश्तों की जमात से ऐलान करता है, मेरे फरिश्तों ये बताओ कि मेरे इस बंदे को सख्त सर्दी की रात में इबादत करने पर किस चीज ने मजबूर किया है, किस चीज ने इसके अंदर शौक पैदा किया है इबादत करने का। तो फरिश्ते अर्ज करते हैं, परवरदिगार आलम तेरा भला बंदा जो इस सख्त सर्दी की रात में इबादत कर रहा है, तेरी बंदगी कर रहा है, उसकी वजह यह है कि वो जहन्नम के अजाब से, तेरे अजाब से खौफ खाता है और तेरी रहमत का उम्मीदवार है। तो अल्लाह इरशाद फरमाता है, मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने अपने इस बंदे को जो मेरी रहमत का उम्मीदवार है, मैंने इसकी उम्मीदों को पूरी कर दिया है और मेरे जिस इस अजाब से ये डर रहा है, मैंने अपने उस अजाब से अपने इस बंदे को निजात अता फरमा दी है। तो इन ठंडक की रातों में इबादत करने का लुत्फ अलग हुआ करता है, वजू करने का मजा अलग हुआ करता है, अगर गुस्ल की जरूरत हो तो नहाने का मजा अलग हुआ करता है। शर्त यह है कि आप अपने आप को मुकम्मल तौर पर मोमिन बनाए और मुकम्मल तौर से इस्लामी उसूल व कवानीन पर अमल पैरा हो करके जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, कहने सुनने में जो कुछ कभी बेशक अपने फज़ल व करम से माफ़ फरमाए।